Welcome to Bloggers Alliance interview series. Today, we have an interesting guest with us. She is a TEDx speaker, a life coach, NLP practitioner, self mastery online course instructor, and an author too. I, Anushka Jain, and Bloggers Alliance welcome Ms. Monica Singh. Hello. Thank you so much, ma'am, for joining with us. Thank you, Anushka. Thank you for inviting me here. So, ma'am, your achievements are amazing. Like so many talents. Thank you. Person, I'm just obliged to talk with you. Thank you. Thank you. Same here. The first question which I would love to ask is that you are a recognized TEDx speaker. So, how did you reach there? So, I'm into speaking from last many years. I started in 2009 actually. But I never think of TEDx before. एक्चुअली में मैंने TEDx के बारे में सोचना शुरू किया जब मैंने पहली बार बुक लिखना स्टार्ट की थी. तो जब मैं बुक लिख रही थी देन आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मुझे कहीं पे TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए एंड आई एक्चुअली वांटेड टू स्पीक देयर. सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू TEDx, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ सोच रही थी कि मुझे TEDx के बारे में जाना है. आई वाज ड्रीमिंग अबाउट इट एंड आई वाज थिंकिंग and I was even researching on it. I was researching on TEDx कि कैसे जाते हैं वहां पे, कैसे इनविटेशन आता है, कैसे एक्चुअली में मौका मिलता है लोगों को वहां प्लेटफॉर्म पे जाने का. So I was researching from my part, but I actually didn't get any thing. Actually, I didn't get anyone whom I can go and ask that, hey sir, I want to come to your platform TEDx, can you please invite me? No, it didn't happen like that. I was just dreaming, if you say. And one day after 2 years, I just got the mail from their side, and they said they wanted to invite me for TEDx. Happen in just one day or in just one moment. I was actually dreaming about that thing from last 2 years. So and this is what I preach also, this is what I teach to people. अगर आपको कुछ चीज लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको लाइफ में कुछ चीज चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to start dreaming about it. You first have to start thinking about that. क्योंकि लोगों के हाथ से opportunities miss हो जाती है. You know why? Because they are not actually thinking about that opportunity at all. तो अगर कोई opportunity grab करनी है, तो first of all you have to start thinking about that thing, that what exactly you want in your life. Or this what happened to me. Whatever you say, manifestation power or mind power or some universal energies. So this is what I preach also. Special moment for me. And जब मैं वहाँ पे first time पहुंची थी, so it was like first day जो था वो dinner party थी, जहाँ पे सारे और भी जो speakers आए हुए थे उनके साथ में introduction हुआ और जानने को मिला कि और कौन कौन आए हैं एक्चुअली में. एंड देन द फाइनल डे, द सेकंड डे वाज द मेन इवेंट. तो उस दिन 18 मिनट का टाइम मिलता है, और वहां पे उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया कि आपको 18 मिनट मिलेगा या कुछ इस तरीके का कुछ भी बताया नहीं. ये मैं खुद पहले से ही रिसर्च करके गई थी, क्योंकि ये मेरी ये मेरा ड्रीम था ना. यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस वाज माय ड्रीम एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट कि मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो कि सिर्फ 18 मिनट में ही खत्म हो जाए. ऐसा ना हो कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू गेट इन योर लाइफ, सो जब आप स्टार्ट करते हैं सोचना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं. और जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती है ना, तो आप एक्चुअली में तैयार होते हैं. क्योंकि अगर मैं बोलूं TEDx की, ऐसा नहीं कि शायद मुझे या और लोगों को भी आती होगी, बट नॉट एवरीबडी गो एंड टेक द अपॉर्चुनिटी, राइट? बिकॉज समवेयर दे फील कि शायद मैं रेडी नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना. तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं. बट जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं कि ओके, शायद इस तरीके के चीजें हो सकती हैं और मुझे इस तरीके से पहले से ही तैयार रहना चाहिए. So it was special. You were very lucky that for the thing which you were preparing for, you got it. You got an opportunity for yourself. Yeah, I'm actually lucky. I'm feeling lucky for that. We are the speakers and we are the listeners and you are the speakers. So
it is said that people who speak, they have such intensity of that thought in their minds, and many times it happens that people who are listening are not able to grab that level of intensity, because it happens. My mother is also an author, so she says that जिस भावना से मैं लिखती हूँ उस भावना से पढ़ने वाला हो सकता है नहीं पढ़ पाए, but it happens. So how did you manage to share that single message with the same intensity of that you are feeling, so that the listeners also feel with the same intensity? See, whenever you are delivering your thing, okay, whenever you are speaking your heart out, not just on TEDx platform, I'm saying, even in regular days, okay, even in regular days, every day, okay, I mean in normal talks also, it just this happens. जो भी हम बोलते हैं, वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो उसको एज इट इज नहीं लेता है. एवरीबडी टेक्स एनीथिंग ऑन देयर ओन मेंटल लेवल. क्या पता मैंने कुछ और इंटेंसिटी से बोला हो, लेकिन आपने किसी और इंटेंसिटी से या किसी और इंटेंशन से सुना हो. सो बोलने वाला क्या बोल रहा है और सुनने वाला क्या सुन रहा है, मतलब दोनों का जो लेवल है वो अपने अपने मेंटल स्टेटमेंट पे होता है. बट टेडेक्स पे ये मौका मिलता है कि 18 मिनट तक जब आप किसी को सुन रहे हो, 18 मिनट इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट? तो 18 मिनट इज समथिंग, जब आप लगातार किसी को सुने जा रहे हो, बेशक आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट मिस कर दिए हो कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लगातार जब 18 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हैं तो आपका वो जो वो स्पीकर है जो भी बताना चाहता है, एक्चुअली वो मैसेज क्लियर हो जाता है. इसी तरीके से एवरीडे लाइफ में भी यही होता है. अगर आप किसी को भी जज करने से पहले जान ले कि एक्चुअली में वो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है एक लाइन में या 2 लाइन में या एक पैराग्राफ में दूसरे वाले बंदे को जज कर लेते हैं. ओके, दिस हैपेंस इवन इन आवर रेगुलर डेली लाइफ. तो अगर किसी को समझना है, किसी को अंडरस्टैंड करना है, देन गिव इट अ प्रॉपर टाइम, लिसन टू देम एंड यू विल ऑटोमेटिकली मैच योर वाइब्स विद देम. क्योंकि एक किताब जो है वो एक पन्ना या 2 पन्ना या 1 या 2 चैप्टर पढ़ने से नहीं समझ में आएगी. वो कैसे समझ में आएगी? जब आपने वो पूरी बुक पढ़ ली हो. उस पूरी बुक का जो भी आपको समझना है वो पूरी बुक पढ़ने के बाद ही आप समझ सकते हो. अदरवाइज नहीं गुजरते हैं तब तक आपको हेवन का अंदाजा नहीं होता, हाउ हेवन वुड बी, राइट? So for happiness, I am definitely went through some stress in my own life, anxiety, sadness, all the negative emotions you can imagine, and I went through all that in my own life, okay? But I was not like that हमेशा से. मतलब अगर मैं पीछे जाती हूँ और अपनी लाइफ चेक करती हूँ, आई वॉज ऑलवेज अ हैप्पी किड एंड वेरी हंसी मजाक करने वाला बच्चा. आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट in my school days, in my college time. I was always like that. But when I came to the real world, or you can say when people are fighting for their career and wanting to go ahead and trying to reach on some level, so जब आप वो रियल लाइफ में आते हैं एंड यू आर डूइंग योर स्टफ, तो क्या होता है, आप बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी चीजों से, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं. आई ऑल्सो वेंट थ्रू ऑल दैट थिंग. मैं भी बहुत सारे टाइम स्ट्रेस में रही. मैं इतना रोती थी अपने कमरे में बंद करके, और सारा दिन रोती रहती थी. कब दिन शुरू हुआ कब रात हो गई ये भी नहीं पता चलता था. बट दोज डेज एक्चुअली taught me something. उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई this is not the best way to live life. Because जब मैं उस एंजाइटी और स्ट्रेस वाले डेज में, टाइम में थी, जब बहुत सारा प्रेशर अपने ऊपर ले रही थी, और even I was heartbroken that time. So you cannot imagine me that time. My face was like this, my face was swollen, my body was swollen, and my eyes were like this. When your face is swollen, your eyes become like this. So I was not even a good looking person. I was not a healthy person at that time. So okay, it was happening with me, and then I thought I learned something deep within me, that whatever
happening right now, this is not something I want, and this is not something the right way to live life, right? Because in life, what you want to be happy, you want to laugh more, you want to spend good time more, and you want to be connected with me. And then I thought I learned something deep within me, that whatever happening right now, this is not something I want, and this is not something the right way to live life, right? Because in life, what you want to be happy, you want to laugh more, you want to spend good time more, and you want to be connected with people more. So those are the bad time. And then when I felt that in myself, then I decided, okay, I should actually share this message with everybody else too, that it's okay. Yeah, I mean, there are those days which makes you sad, but it's in your hand that you can actually make yourself happy, that you can actually bring that power back. You actually can take over everything, that you want in your life, and you can bring anything into your reality. You can make yourself happy, you can make world happy, you can make people happy around you. So this is something, that's where I just came up with the idea of this book, Formula of Happiness. And Many people are gonna watch this video, this talk of us. So, any success tips or any things that you wanna tell those people who are listening to you, who will be listening to you? I'm just saying, believe in yourself and love yourself, and everything start with you. अगर आपको चाहिए कि बहुत सारा प्यार आपको मिले, then अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करें. अगर आपको चाहिए कि बहुत सारी शोहरत, नाम, सक्सेस आपको मिले, तो ये सब पहले अपने आप से स्टार्ट करें. अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस आए, तो वो पीस पहले अपने आप से स्टार्ट करें. जब आप अपने आप में पीस महसूस करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो जो पीस है वो आप वर्ल्ड को भी देंगे, ना ऑटोमेटिकली वर्ल्ड लेवल पे वो पीस आएगी. सो वट एवर यू वांट टू डू, you want to earn money, you want to start your own business, you want to change your career, you want to have a good relationship and good partner, whatever you want, everything is possible. Just everything start with you. So love yourself, start believing on yourself, and take action. जो भी आइडियाज हैं आपके, उन आइडियाज पे एक्शन लेना स्टार्ट करें. बिकॉज आई वोंट बी हियर. अगर मैं सिर्फ अपने दिमाग में होती और मैं सिर्फ सोचती हुई रहती, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती, राइट? वो जो आइडिया मेरे पास आया था, फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, मेरे दिमाग में ही घूमता रहता और मैं सोचती रहती कि मुझे बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, राइट? तो अगर उसके लिए if I want to bring anything into reality, then I have to take action for that. So whatever is your idea, that idea is best, my friend, let me tell you. So take action on that. That's it. अगर कुछ भी चीज को रियलिटी में तब्दील करना है, आपके आइडियाज को रियलिटी में तब्दील करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है. और अपने आइडिया पे एक्शन कैसे लेंगे? जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, है ना? So simple. Life is very simple. We actually usually make it very tough and rough, but it is really easy. It's a play. Just keep playing. Keep enjoying. So, ma'am, at last, would you like to share the topic which you're going to talk about in TED, or is it a surprise for us? No, it's the same. I always talk about it. It's mind power. I talk about mind power on TEDx stage, and it was fun there because मैंने कुछ एक्चुअली एक्टिविटीज भी उनके साथ में करवाई थी. जो ऑडियंस थी वहां पे ना, कुछ एक्टिविटीज भी मैंने उन लोगों के साथ में की थी. तो वो इट विल बी वेरी प्लेजर वाचिंग वीडियो, क्योंकि तभी आप वो एक्टिविटीज और सब कुछ समझ सकते हैं एक साथ. अदरवाइज वो मेरा टॉपिक सेम ही है. आई मीन, आई टीच माइंड पावर, एंड I always will be teach mind power because I love empowering people, and I believe that you have this wonderful thing you have, which is called your mind. So happened before, this is happening now, and this will happen again in future, because this whole earth, जो अर्थ है एक्चुअली, ये लिविंग क्रिएचर के लिए ही बनी हुई है. लिविंग क्रिएचर हर बार कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर आता है, कुछ नया क्रिएचर इवॉल्व भी होता है,
तो कई बार हमारे पास में पावर होती है उस क्रिएचर से लड़ने के लिए, कई बार हमारे पास पावर नहीं होती है, बट एज ए ह्यूमन वी आर रियली वेरी स्ट्रांग, वी कैन फाइट विद एनीथिंग। सो अगर 2-3 महीने की बात है, अगर ऐसा कुछ हमें सफर करने के लिए मिल रहा है तो इट्स ओके, रियली डजंट मैटर, क्योंकि हम इस टाइम में अपने आप को वीक ना बनाएं, स्ट्रांग ही बनाना है अपने आप को, क्योंकि लाइफ खत्म नहीं हुई है अभी। ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है, पूरा अर्थ खत्म हो गया, पॉपुलेशन खत्म हो गई है, सब कुछ वैसा का वैसे ही आगे भी वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, इट्स ओके, कुछ थोड़ा टाइम मिला है अपने साथ स्पेंड करने का, अपने फैमिली मेंबर के साथ में स्पेंड करने का और इस सिचुएशन से लड़ने का, तो इट्स ओके, स्टे एट होम, कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सोसाइटी सेफ, कीप ह्यूमैनिटी सेफ, एंड देन जब लाइफ फिर से दोबारा से चालू हो जाएगी, देन यू विल मिस दीज डेज, ओके। क्योंकि फिर दोबारा से जब हम वो अपनी भागम दौड़ी वाली लाइफ में आ जाएंगे ना, देन वी विल मिस, ओ वाओ वो भी क्या दिन थे। एक टाइम, लेट मी टेल यू, आफ्टर 10 days हम अपने चिल्ड्रंस को ये बता रहे होंगे, किड्स, हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, हम एक महीना, 2 महीना, 3 महीने तो पूरा घर में ही रहे थे, कहीं गए नहीं थे, टीवी देखी थी, मूवी देखी थी, फैमिली के साथ में कैरम खेला था, लूडो खेला था, इट वाज आल्सो फन। लेकिन देखो अब तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ डैडी, आपको टाइम नहीं मिलता है हमारे लिए, है ना। सो दिस इज आल्सो टाइम, जस्ट कीप एंजॉयिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो भी है आपका दिमाग उसको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाता है। अगर आप किसी भी कंडीशन को एज अ पॉजिटिव लेकर के चलना चाहते हैं, सो दिस इज ऑन यू। सो just take everything as a positive, and find yourself as a strong person, और आगे जाकर के अपने आप को अभी इतना स्ट्रांग बना लो कि ताकि फिर दोबारा से जब भागदौड़ वाली लाइफ में आ जाओ, जब आपके पास में टाइम नहीं हो अपनी फैमिली के साथ बिताने का, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों के साथ बिताने का, नेबर्स के साथ में बिताने का, तो आप उस टाइम में भी, माहौल में भी कुछ टाइम ऐसा निकाल पाए कि यस दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट वर्क इज इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम, एक्चुअली आपके रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इट्स ओके, आई मीन it's time to enjoy तो just keep enjoying, and future is bright for you, so all the best. Thank you so much, ma'am. It was just amazing to talk to you. It was just Same here, Anushka. Same here, Anushka. You just take care of yourself and your family, and we wish you very, very, very all the best for your future and for your remaining life. So that thank you, inspiring us forever. Thank you so much, and you also take care of yourself and keep enjoying the life. Bye bye. Okay.